آپ کا نیکسٹ لیکچر جو آج آپ کا لیکچر ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 سے 106 تک ہے۔ بلا تاخیر ہم اس کو آغاز کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں کیا خبریں دی ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے یہ سنا تھا لیکچر کہ جبرائیل کا اور میکائیل کا اور یہودیوں کی خاص طور پر جبرائیل سے دشمنی کا سبب کہ وہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل عذاب لے کر آتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اگر عذاب لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آتے ہیں اور اس قوم پر لے کر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت نمبر 100 ہے کہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب بھی عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے کوئی وعدہ کیا، وعدہ باندھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں، یعنی کہ ان کی جو روش ہے یا ان کا طریقہ ہے اس کے بارے میں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ وعدہ خلاف ہوتے ہیں، تو یہاں فرمایا گیا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہ لوگ جب بھی عہد کرتے ہیں تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اس کو اوت الکتاب توڑ دیتی ہے، یعنی کہ اس کو توڑ دیتی ہے، اور بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر جو بات ذکر ہوئی ہے اس میں ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھا جائے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے کی پابندی کرو، جو وعدہ تم پکا کر لیتے ہو، گرہ باندھ لیتے ہو، اس کی پابندی کرو۔ پھر وہ وعدہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ علم آہد الیکم یا علم آہد الیہ یا بنی آدم الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ وعدہ انہوں نے یہ لیا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، تورات کو تسلیم کریں گے، لیکن ان میں سے ایک فریق جو اہم ان کا فریق تھا، جسے آپ مذہبی فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو ان کے مذہبی لوگ تھے، خاص طور پر ان کے ربی، ان کے علماء، ان کے مشائخ، انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، اور بل اکثرهم لا یؤمنون۔ یہاں دوسرا مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اکثریت کن لوگوں کی ہے۔ ہمارے ہاں جو اکثریت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت اگر کسی بات کے بارے میں کہہ دے تو وہ درست ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہاں پر اکثریت کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اکثریت نہیں جانتی، اکثر لا یعلمون لا یعقلون، اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، اور جو اقلیت ہے، کم لوگ ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، قلیل من عبادی الشکور۔ تو اس لیے ایسے ہی واضح ہوتا ہے کہ اکثریت اکثر لا لوگ، واضح ہوگی نہیں بات؟ جی کلاس۔ یس سر۔ اچھا آگے فرمایا ولما جاءہم، جب بھی آیا ان کے پاس رسول، کوئی رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا، تو جو بھی رسول ان کی طرف آیا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ جب اللہ اس کو بھیجتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس طرح اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اس طرح اس سے نا آیات کے وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث۔ تو وہ اجتبا کو، اجتبا جو ہے نا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اجتبا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، یہ بالکل اب اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ بھی کسی شاپنگ مال پہ جا کر ساری چیزوں میں سے خاص چیز چنتے ہیں، پھر بعض اوقات آپ اس کو میچ کرتے ہیں کہ یہ میرے فلاں سوٹ سے میچ ہو، یہ جوتا میرے فلاں سوٹ سے میچ ہو، یہ چیز میری فلاں چیز سے میچ ہو۔ یہ چوائس کے پیچھے کوئی نہ کوئی رول اور کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی چیز کو چوز کر لیتے ہیں۔ ایگری جی؟ یس سر۔ اب یہاں تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ یا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یا یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن مجید کے اندر ہی، اور وہ بھی یہی فرمایا ہے کہ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور نیکوں میں سے کر دیا۔
अल्लाह ताला चुन लेता है रसूल को, वो रसूल आता है कौम के पास, क्या लेकर आता है? अल्लाह का पैगाम लेकर आता है। अल्लाह ताला फरमाता है मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। ये आप भी माशाल्लाह आजकल आप इंटरनेशनल रिलेशंस के और करंट अफेयर्स की सारी माहिर हैं, तो आप जानते हैं कि वार्निंग के बगैर आप किसी भी सजा को नाफिज नहीं कर सकते। यकीनन आपको पहले वार्निंग देनी पड़ती है, फिर आप सजा नाफिज करते हैं, पहले वार्न करते हैं फिर सजा होती है। क्या ख्याल है? यस सर, सही कह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे टीचर आता है क्लास में, फर्स्ट लेक्चर लेता है, तो क्लास में आते सार ना 2 मिनट कहते हैं अगर किसी बच्चे ने शोर किया तो मैं उसकी मतलब उसको मुर्गा बना दूंगा या उसको खड़ा कर दूंगा। तो अब आपने पहले वार्न कर दिया है, फिर वो बच्चा अगर गलती करता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। वो टीचर ये नहीं, कोई नहीं कह सकता टीचर आपने बताया ही नहीं मुझे, तो लिहाजा मैंने ये कर लिया। अल्लाह ताला फरमाता है मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन, हम भी अजाब नहीं भेजते हत्ता नबअस रसूला, यहाँ तक कि हम किसी रसूल को भेज। तो रसूल आगे क्या करता है? वार्न करता है। वार्निंग की दो शक्लें होती हैं, एक शक्ल होती है तबशीर और एक होती है तनजीर। मतलब एक है कि बशारत दे दी, ये काम करोगे तो ये मिलेगा, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। एक होता है इंजार, कि ये काम करोगे तो ये सजा है। तो साफ ज़ाहिर है पनिशमेंट्स एंड प्राइजेस, एक तरफ इनाम है एक तरफ पनिशमेंट है। तो रसूल इसी चीज के बारे में आगे बताता है, नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। फरमाया वो जो रसूल लेकर आया मुसद्दिकुल लिमा माहुम, और वो क्या थी? वो तस्दीक करने वाली थी उस चीज की, नबाज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, जो उनके पास किताब थी उसकी तस्दीक करने वाला। यहाँ पर कुरान मजीद मुराद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। तो नबाज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, अल्लाह फरमाता है उसको फेंक दिया, बस कुछ डाल दिया उन लोगों की एक जमात ने जिनको किताब दी गई थी। ये खास तौर पर वो जमात है जो दीन को समझती थी, लेकिन इनका जो सारा कारोबार है वो दीन की बुनियाद पर इस्तेमाल था। आपको पता है कि मजहबी तबका बाद औक़ात दीन को कारोबार बना लेता है और दीनी अमूर में, दीनी कामों में अपनी मनमर्जी से ऐसी तावीलात करता है कि जिनसे उनका पेट पलता रहे और लोग गुमराह होते रहे। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने एक जामे चीज नाजिल फरमा दी। आप मिसाल के तौर पर आप यूं समझ सकते हैं कि एक आदमी सम अप करता है किसी चीज को, कि आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, उसके पास 10 रुपए अलग अलग हैं। तो एक आदमी क्या करता है? सबसे 10 रुपए लेता है, फिर कुछ अपनी तरफ से 10 डाल के उसे 100, पूरा एक 100 का नोट जो है ना वो ले आता है। अब आप बताइए, आपका 10, उसका 10, इसका 10, कुछ 3 4 आदमी के पास 10 रुपए थे, वो 40 रुपए उसने इकट्ठे किए, अपनी तरफ से 60 डाल के 100 इकट्ठा करके वापस ले आया। तो साहब ये 100, इसके अंदर सबके 10 10 नोट मौजूद है और सबको खुश होना चाहिए कि हमारे नोट भी बच गए और एक्स्ट्रा भी मिल गया। अल्लाह ताला ने तौरात, इंजील और पिछली सारी किताबें ना सिर्फ उनकी तस्दीक की, तौजीह की, correction की, सारी चीज को अपडेट करके पुराने जी में नाजिल फरमा दिया। इन लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, मगर इन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश डाल दिया। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, और अल्लाह ताला की किताब पीठों के पीछे ले गई, यानी कि उससे एराज किया। और इसमें कुरान मजीद का इनकार दरअसल तौरात का इनकार है, कुरान मजीद का इनकार दरअसल इंजील का इनकार है, क्योंकि कुरान तौरात और इंजील की तस्दीक करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, इन्होंने अल्लाह ताला की किताब को, वरा कहते हैं पीछे को, अमाम कहते हैं आगे को, तो वरा का मतलब होता है इन्होंने पीछे पीछे डाल दिया। ज़ुहूरिहिम ज़हर उनकी जमा है, पीठ के पीछे, यानी कि इसको बुला दिया। कान्नहुम ला, कि गोया कि ऐसे लग रहा था कि जैसे इनको किसी चीज का इल्म नहीं है। कान्नहुम ला यालमून, इनको मालूम ही नहीं, हालांकि इनको मालूम है कि अल्लाह ताला ने किताब को नाजिल फरमाया है। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है यहूदियों की बुरी आदत का यहाँ बयान किया है कि वह तबाऊ, इन्होंने पैरवी की मातल शयातीन, जो शैतान पढ़ा करते थे, अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान के दौर में। यहाँ भी आपको इसकी तफसील मालूम होगी, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता किए थे। कौन कौन से मोजज़ात थे जी उनके पास? वो हवा को सर अपने बस में कर लेते थे, यानी कि उसके जरिए से तख्त उड़ा के जी एक जगह जी। से दूसरी जगह अब जाना। वो अब वो शयातीन उनके कब्जे में, जिनों पर उनकी हुकूमत थी, जिन्नात के कब्जे में। परिंदों की बोली वो जानते थे। आपने जो बात की हवा पर, वो तख्त के ऊपर बैठ के सफर कर लेते थे। गुदू आशा, 1 महीने का सफर जो है वो एक लपक पलक झपकने में हो जाता था। अच्छा, ये तमाम चीजें, अच्छा सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों ने ये बात मशहूर की हुई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहली बात तो ये है कि इन्होंने ना अपने मुल्क के अंदर जादू को फरोग दिया हुआ था। तो ये जादू सिखाया करते थे। जादू जब सिखाया करते थे तो उस जादू के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती थी।
تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ ساری جو جادو کی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری کتابیں سلیمان علیہ السلام نے یعنی کہ اپنے قبضے میں لے لی اور داخل دفتر کر دی، اور تاکہ ملک کے اندر سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور یہ وہاں جادو یہ کیا کرتے تھے کہ جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ہو جائے، کہ آپ آگے پڑھیں گے۔ ہاں، یہ جادو وغیرہ ہمارے ملک میں بھی اور عام طور مسلمانوں کے اندر بڑا مشہور ہے۔ تو انہوں نے ساتھ اب آگے جو لفظ بولا نا انہوں نے، وما کفر سلیمان، اور شکر نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس معجزات ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ جادو والی کتابیں جو انہوں نے قبضے میں لی ہے ان کے ذریعے وہ یہ جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جادو کرنے کے بعد انہوں نے جنات پر حکومت کی ہوئی ہے۔ اس کو صاف ظاہر ہے جادو کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں قرآن مجید نے تو واضح طور پہ اس کو کفر قرار دیا ہے، اور یہ 7 بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ 7 جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پہلے تو یہ واضح کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور ولاکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ تو شیطانوں نے کفر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا ان کو حسد تھا کہ ان کا ایک یہودی لبید بن عاصم، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جو اس نے کھجور کے ایک خوشے کے غلاف میں رکھے تھے وہاں جادو کیا، اور اسے زروان نامی کنویں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری 6606 اور 5763، وہاں پر یہ واقعہ سارا پڑھ سکتے ہیں کہ زروان جو ایک کنواں ہے اس کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے تنگ کیا اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں آخری 2 صورتیں نازل فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے آخری 2 صورتیں سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ یہ 11 گروہ پر اس نے نا 11 گرہ بنائی مال کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ 11 ہی آیات نازل ہوئی۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ وہاں سے کنویں سے وہ چیز اور کنگھی وغیرہ ڈال کے لے کر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ یہودی اس وقت کیا کرتے تھے، اور یہودیوں نے اس چیز کو مسلمانوں پہ بھی رائج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جو اصل چیز اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دی ہوئی تھی اس کے بارے میں یہودیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جو کتابیں ہم سے لے کر سلیمان نے اپنے قبضے میں لی ہوئی ہیں، اب سلیمان نعوذ باللہ ان کتابوں کے نسخوں پر اور وہ عملیات پر عمل کر کے یہ جنات پر حکومت کرتے ہیں، ہوا پہ تابع کر لیتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ نفی کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ جادو کرنا کروانا کفر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز جو نازل کی گئی تھی 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت۔ تو ہاروت اور ماروت 2 فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جب یہ داخل دفتر ہوگی، بین ہوگی، تو اللہ نے آزمائش کے طور پہ فرشتوں کو بھیجا کہ کیا یہودیوں کے اندر سے، بنی اسرائیل کے اندر سے یہ بیماری ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی چیز پر پابندی لگا دی جائے تو لوگ پھر اس کو چھپ کے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ آپ کو ایک چیز مل رہی تھی، حکومت نے سمجھا کہ یہ جس طرح ہمارے یہاں بسنت منائی جاتی تھی تو بسنت اوپن ہوتی تھی، حکومت نے محسوس کیا کہ اس سے تو نقصان ہو رہا ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس نے بسنت پہ پابندی لگا دی۔ اب جب بسنت پہ پابندی لگی تو لوگوں نے چھپ کے منانا شروع کر دی۔ اسی طرح ہاروت اور ماروت جب آئے تو لوگ چھپ چھپ کے، دل میں جادو تو موجود تھا ان کے، تو لہذا چھپ چھپ کے اپنا جادو سیکھنے کے لیے ہاروت اور ماروت کے پاس جانا شروع ہو گئے۔ اور ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس کی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی رشوت والے کو پکڑنے کے لیے جو رشوت لیتا ہو، حکومت 1-2 آدمی ایسے بھیجتی ہے جو بظاہر یہ سامنے شو کرتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس نشان زدہ نوٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ نشان زدہ نوٹ جب وہ دینے لگتے ہیں تو عین موقع پر ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی تھی بات؟ یس سر۔ تو یہ Yes, sir. ہاروت، جی ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ تو ہاروت ماروت جو ہے نا وہ ان کو کام کرنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اے ہم سے جادو سیکھنے والے کفر نہ کر، کفر نہ کر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں
तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, वो किसी आदमी को, ये फरिश्ते किसी को नहीं सिखाते थे, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हारूत भी और मारूत भी। ग्रामर में आप पढ़ेंगे हत्ता के बाद यकूला ने, तो नून से नी खत्म हो गया है हत्ता की वजह से, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो दोनों कहते, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, कि हम तो फितना है और तू कुफर ना कर। तो ये अमलियात ऐसे थे जिनसे वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। फयतअल्लमून मिनहुमा, तो उनसे खास तौर पर सीखते, मा युफर्रिकूना, जो फर्क कर देते, बही बैनल मरी व ज़ौजी, आदमी और उसकी जौज यानी उसकी बीवी में। आपको मालूम है कि शैतान इब्लीस, वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस रात को शाम के वक्त अपना तख्त पानी पर बिछाता है और फिर अपने कारिंदों से सारे दिन की कारगुजारी सुनता है कि आज तुमने क्या किया। और जो आदमी आकर ये कहता है कि मैंने आज मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी, तो शैतान यानी इब्लीस अपने तख्त से उठकर उसको गले लगाता है कि तू एक नेकी का काम, यानी कि तू सही काम करके आया, यानी कि तूने दो फैमिलीज के दरमियान ऐसी रिफ्ट पैदा कर दी है कि जिससे पूरे मुआशरे में तबाही फैल जाएगी। तो आपको हैरानी ये होगी कि मुसलमानों में भी अब ये चीजें मौजूद है कि मुसलमानों ने उस कुरान मजीद के अमलियात बना लिए हैं। कुरान मजीद आप पढ़े तो उसको तावीज़ की किताब बना लिया गया है, किसी ने उसको कुछ बना लिया है, किसी ने इसको आदात की शक्ल दे दी है, हत्ता के बिस्मिल्लाह के बारे में 786 बना दिया गया है। इस तरह कई चीजें आपको मुसलमानों में भी मिलेगी। एग्री जी? यस यस सर। सर। और जादू, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह फरमाता है, ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, साहिर कहीं से भी आ जाए, जादूगर कहीं से भी आ जाए, कामयाब नहीं होगा, नाकाम हो जाएगा, जहन्नम कहीं दिन मच जाएगा। फरमाया ला युफ्लिहु साहिरून, जादूगर सारे के सारे मिल जाए तब भी कामयाब नहीं हो सकते, मिल जाए सारे उनको फलाह नहीं मिल सकती, फलाह ईमान वाले को है। अब इन्होंने ये एक घटिया काम शुरू किया कि आदमी और बीवी में जुदाई डालते थे। फिर ये है कि जिस बीवी को अलहदा कर लेते फिर कोशिश करते हैं कि उसके साथ उनका निकाह हो जाए, यानी कि बद अखलाकी की इंतहा देखिए, ये यहूदियों के अंदर मौजूद थी। अब अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह के हुक्म से। साफ है, हुक्म तो अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर हमें इसमें से गुजारता है, और उसने दुनिया बनाई इसलिए है कि एक खास मौके तक उसको मोहलत दी जाए। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, तुम्हारे लिए जमीन में एक आजमाइश है एक मुद्दत तक। तो फरमाया कि अब वो मुद्दत पूरी होगी तो अल्लाह की हिकमत है कि वो जालिम को जुल्म करने की मोहलत अता फरमाता है, मजलूम को भी मोहलत देता है, जालिम को भी मोहलत देता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने दुनिया अपने मनतकी अंजाम तक लेकर जानी है। तो लिहाजा वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो ये चीज सीखा करते थे, और वयतअल्लमून, और ऐसी चीज सीखते, मा यज़ुर्रुहुम, जो नुकसान दे थी, वला यनफउहुम, और उनको फायदा नहीं देने वाली। इससे वो तमाम इल्मों की नफी हो जाती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले। सावधान है, जो इल्म झूठ पर मबनी है, मजाक पर मबनी है, लोगों के लोगों की इस्तेहजा पर और लोगों को जुगलबाजी करने के लिए या लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, वो तमाम इल्म जिस इंसानियत का नुकसान है वो इस आयत के तहत बिल्कुल नाजायज ठहरते हैं। ऐसी चीज सीखी जाए जो लोगों को नुकसान पहुंचाए और फायदा ना दे। फरमाया वाला का तालीम हो, और वो यकीनन जानते थे, यकीनन उनको मालूम था, लमा निश्ता उनकी किताबों में भी मौजूद था, तौरात में मौजूद था, पिछली चीजों में मौजूद था। वाला का तालीम हो, लमा निश्तरा हो, कि जो कोई ये खरीदेगा, इश्तरा का मतलब होता है खरीदना, कि जो कोई भी जादू को खरीदेगा पैसे देकर, इस तरह आमिल के पास जाकर आदमी पैसे देकर ये सारे काम करवाता है। और आपको पता है बाबा बंगाली और पता नहीं कौन कौन से प्रोफेसर, काले जादू के माहिर, काले इल्म के माहिर, मेरा जो इल्म है वो दुनिया के आखिरी कोने तक असर करता है, संग दिल से संग दिल, आपके कदमों के तहत मुक्ति, और ये और वो, खामद तुम्हारे कंट्रोल में, बीवी, भाई इस तरह की चीजें आपने इश्तिहारों में भी पढ़ी होंगी, इतवार के मैगजीन में भी आती है, और पूरा एक निजाम कायम है। बताइए, दुरुस्त है? जी गलत उस्ताद, है। सब दुरुस्त है। नहीं, वो तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीजें आपको जो मैंने बताई हैं कि मुसलमानों में ये चीजें जी जी सर, राइज हैं। दुरुस्त है। हाँ, मुसलमानों में चीजें राइज राइज तो हैं। है बिल्कुल। मुसलमान जो है ना वो घरों को तबाह करने के लिए, हत्ता कि ये वाली आयत जो है ना, वाल कहीं ना बहिनो मुल अदावत वाल बगदा, ये जहाँ पर कसर है, जो आगे आएगा ना, वो कुरान मजीद में जो आयत है ना, वाल कहीं ना बहिनो अदावत वाल बगदा, कुरान के बाद आयत को इस्तेमाल नाउज़ुबिल्लाह किया जाता है मियाँ और बीवी में लड़ाई डालने के लिए, ये अंदाजा लगाए। तो कुरान मजीद के नक्श बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर
उसके आदात बनाए जाते हैं। कोई बिस्मिल्लाह को 786 पढ़ के, कोई कुरान को उलट उलट करके लिखता है, कोई बिस्मिल्लाह उलट करके लिखता है। इस तरह की तमाम चीजें, नक्श नक्श आदात, ये आपको कुरान मजीद के आखिर में नजर आएंगे। कई कुरान में ऐसे छपे हुए हैं जिसको मशक सितम बनाया गया है, और उसके अंदर कुरान मजीद की आयात के आदात निकाले गए हैं। और आप सबको शायद इल्म हो कि ये जो आदात का इल्म है, ये भी यहूदियों का एक खुफिया इल्म है, और इन्होंने उस इल्म को मुसलमानों में मुंतकिल किया है। अब आप मुझे एक सादा सा जवाब दें। अब आपने 786 को सुना होगा कि ये बिस्मिल्लाह का कायम मुकाम है, सुना होगा जी? यस सर। जी सर, अच्छा, सुना हुआ है। अब आपसे सवाल है कि अगर आप नमाज शुरू करते हैं और 786 वो बिस्मिल्लाह का कायम मुकाम है, तो आप नमाज शुरू करके सुबहानक अल्लाहुम्मा या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी जो भी दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद आप पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद आप ये औज़ु बिल्लाह पढ़ के क्या कहेंगे? 786। बताइए। नो सर। क्यों नहीं कहेंगे? अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, आप में से हर खातून जो सुन रही है, मर्द जो सुन रहा है, आप सबके नाम के आदात बन जाएंगे, तो आपका नाम जो फातिमा है, अक्सा है, असलम है, अकरम है, क्या ख्याल है? इसकी जगह आप ये कहना शुरू कर दिए, आप 11 है, वो 203 है, ये 555 है, वो 677 है। ये आप बताइए, क्या ये चीज अकल पर मबनी है? नो सर, अदर पर मबनी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें यहूदियों का एक खास इल्म है, कबाला, KABBLA। ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये उनका खुफिया इल्म है। और ये खुफिया इल्म जो है ना, ये आदात का इल्म है, जिसके जरिए वो लोगों पर हुकूमत करते हैं और लोगों को जादू की तरफ माइल करते हैं। वो कौम जिसने नबी अलैहिस्सलाम को जादू से मतलब मुस्तस्ना करार नहीं दिया, उन पर भी जादू किया, बताइए वो आपके किस तरह दुश्मन होंगे? और मैं उनको पता था कि आखिरत वाले दिन ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं, खलाक कहते हिस्से को, और वाला बेसा, और फरमाया वाला बेसा, और इंतहाई बुरा है माशरो भी अनफुसुम, जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया, यानी कि जानें बेच दी। जानों के बदले सौदा क्या किया है? एक घाटे का सौदा किया है कि अपने आप को तबाह कर लिया और जादू को सीखना शुरू कर दिया। हमारे पास क्योंकि हमारा भी इससे वास्ता किसी न किसी हवाले से पढ़ता रहता है इल्मी लिहाज से, तो जादूगरों के जो इंटरव्यूज लिए गए हैं उसमें उन्होंने ना ऐसे ऐसे अस्तगफिरुल्लाह अल्फाज या वाकयात लिखे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मतलब कई जादूगरों ने कहा कि हमें पहले एक ऐसा काम करना पड़ता है जिससे शैतान शैतान जो हमारी मदद करता है, वो शैतान कायल हो जाए कि ये आदमी अब मुसलमान नहीं रहा। ऐसा काम हमसे करवाता है जो शरीयत का इनकार करने वाला काम होता है। मिसाल के तौर पर बाद जादूगरों ने कहा कि हमें शैतान ने उस वक्त हमारी मदद की जब हमने, मतलब अब खवातीन भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो मे भी मैं ऐसे अल्फाज ना बोल सकूं, तो मतलब जैसे कुरान मजीद को नौजुबिल्ला कुरान मजीद की भी हुर्मती करवाता है, इस तरह अपने जो सगे रिश्ते हैं, जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, उनके साथ जना करवाता है, बदकारी करवाता है, अल्लाह ताला के बारे में अजीब गरीब अल्फाज बुलवाता है, ऐसे ऐसे अमलियात करवाता है। उसके बाद जाके शैतान खुश होकर ना किसी हवाले से उनकी मदद करता है। इन्होंने क्या किया? अपनी जान को बेच दिया घाटे के बदले। घाटा दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि जादूगर कभी भी मुतमईन नहीं होता। तो फरमाया लौ कानू यालमून, काश ये जानते कि शरीयत पर अमल करते, जादू से बचते। तो लिहाजा ये जादू करना करवाना, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहिए। और अब आखिरी बात इस वाले से, फिर अगली आयत चुप करते हैं। इसके बारे में ना लोगों को बहुत सारा एक गलत फहमी, इसलिए लोग खास तौर पर खवातीन वो जाती हैं। फिर एक निशानी आप जान लें जादूगर की, बड़ी अहम निशानी, वो ये है जादूगर आप जब भी जाएंगे ना, तो वो आपसे आपकी वालदा का नाम जरूर पूछेगा। शायद आपको इल्म हो इस चीज का। यस सर, मुझे है सर। जी, अब वो और सलाम, आपकी अम्मी का नाम, अभी अम्मी के नाम से क्या ताल्लुक है? तूने जो काम करना वो कर। इसका मतलब है कि जादूगर जो है वो इस चीज को इस्तेमाल करता है, ये इनकी खास पहचान है। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक बात ये है कि जादू पता कैसे चलेगा कि इस आदमी पे जादू हुआ है? नबी अलैहिस्सलाम पे तो वही आती थी, तो वही आने की वजह से आपको अल्लाह ने बता दिया कि आप पे ये काम हुआ है, लिहाजा आप इस तरह करें। बताइए, आज वही आ रही है कि वही मुनक़ती हो गई है, मुकम्मल हो चुकी है, और आप वही की आनी क्या मतलब? बताइए। वही मुनक़ता हो वही गई का सर। सिलसिला तो वही मुनक़ता हो मुनक़ती हो गया है। गई। सहाबा किराम का अकीदा भी यही था। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जब आप फौत हुए तो आपकी बेटी ने कहा, अक्सर उम्महातुल मोमिनीन ने कहा कि आज
मसला ये बना है कि अब वो आसमान से वही नहीं आया करेगी, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। आज कोई आदमी कैसे बता सकता है कि इस पे जादू हुआ है? पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी चीज अता फरमा दी कि जो हर तरह की, अगर आपको शुबह है आपको कि मेरे ऊपर जो कुछ चीज तारी है, ये मुझे लगता है कि फिजिकल नहीं है बल्कि ये किसी शहर की या जादू की शक्ल है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने दो सूरतें नाजिल फरमाई। वो सूरतें, एक सूरह फलक है और एक सूरह नास है। और आपको अल्लाह ने खुद मुख्तार कर दिया। खुद मुख्तार से मुराद है किसी आमिल कामिल के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पता है औलाद के लिए उसके वालिदैन जिस नीयत से दुआ करते हैं, आमिल और कामिल कर सकता है जी? नहीं सर। देखिए, आपके वालिदैन आपके लिए जो दुआ करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता उससे खुलूस से, उस आहोजारी से, उस इल्हा से, उस खुशू से जो वालिदैन आपके लिए करेंगे। तो वालिदैन को मालूम है या आपको मालूम है, आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, इनको कहते हैं मुअव्विज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मुअव्विज़ कहते हैं जिनके जरिए पनाह में मदद आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर मेडिकल है, उसको कहते हैं मॉस्पेल। मॉस्पेल क्या करता है जी? जी, की बात कर रहे हैं? मॉस्पेल नहीं सुना हुआ आपने नाम? नो सर। जी जी सर, सर जो मच्छर से प्रोटेक्शन करता है। जी, मच्छर से प्रोटेक्शन मच्छर देता से है। और प्रोटेक्शन वाले जो। हाँ जी, एक क्रीम होती है ऑन, ओ एन के नाम से, ऑन के नाम से। और वो भी आप अपने जिस्म पर लगाते हैं तो वो आपको मच्छर से बचा लेती है। उसकी तो ऐसी स्मेल होती है कि मच्छर जो है ना वो करीब नहीं आता। इस तरह की कई चीजें हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो प्रिवेंटिव हैं, कि आप उसको लगा लें तो चीज आप पे असर नहीं करती, वो मच्छर नहीं असर करता, फला चीज असर नहीं करती। अच्छा, और इजी हम कर लेते हैं, और इजी कर लेते हैं। मिसाल जिस तरह आप अपनी हांडी को ढकते हैं, हांडी को ढकने से ये होता है कि वो जो मच्छर है, मक्खी है या कोई ऐसी चीज, आपको अंदाजा होता है कि आप ना वो अंदर मेरी हांडी में नहीं गिरी। समझ आ गई ना आपको बात? जी, क्लास समझ आ गई जी? यस सर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आप प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड किस तरह? जैसे ही आपने सूरह यस फलक और सर। सूरह नास पढ़ी, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ गए। इसको कहते हैं तावुज, मुअव्विज़तैन। तो कम अज कम 11 आयतें पढ़ना तो मुश्किल बात है ही नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जौजा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो अल्लाह वहदहू ला शरीक के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम चीजें छोड़ दी और इन्हीं दोनों को पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब आप बीमार होते और आप किसी वजह से इनको ना पढ़ पाते तो मैं पढ़कर आप पर दम कर देती। अब अंदाजा लगाए, यानी कि मियाँ नहीं पढ़ सकता तो बीवी दम करते, बीवी नहीं पढ़ सकती तो मियाँ दम करते। ये शरीयत की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने खानदान को, फैमिली को और उनके रिश्तों को एक दूसरे के साथ इस तरह मुंसलिक किया हुआ है कि मियाँ बीवी के लिए कर रहा है, बीवी मियाँ के लिए कर रही है। और साफ जाहिर है कि अल्लाह ताला की किताब में बिला शक शुबा असर है, अल्लाह ताला के कलाम में असर तो मौजूद है। तो लिहाजा जादू के लिए किसी जादूगर के पास जाना, आमिल के पास जाना, जैसे ही वो आपकी वालदा का नाम पूछे तो ठिठक जाइएगा कि वो आमिल है, जादूगर है, उसका शरीय से कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरे नंबर पर ये है कि उल्लू का खून लाओ, फलाने का लाओ, फलाने का लाओ, कब्र में जाके चिल्ला करना पड़ेगा। और एंड में ये होता है कि चूंकि वो तमाम मुश्किल काम, खतरनाक काम आप कर ही नहीं सकते, लिहाजा आखिर में जादूगर वो अपने दिल की मुराद कहता है कि जनाब मैं ये सारा कुछ कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना, मेरी मैं जानू और वो जान। तो शैतान उसकी इसलिए मदद करता है कि वो जादूगर अपने रिश्तेदारों के, ऐसे रिश्तेदार खवातीन जिनके साथ जो उसकी हुर्मत वाली रिश्ते, जैसे बहन है, बेटी है, उसके साथ जिना और बदकारी में उसको मजबूर करता है। फिर जाके शैतान उसका काम करता है। तो इसके लिए आप कई किताबें मौजूद हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल आप कम अज कम आखिरी जो 11 आयात है हर नमाज के बाद सुबह शाम के अज़कार में पढ़ा करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इससे निजात देगा। और मैं वाला शेख साहब बाज लोग कहते हैं उस्ताद साहब। शेख साहब बाज लोग कहते हैं कि वो जादू का की काट जादू से करना, वो कहते हैं कि चूंकि जादू हो गया तो अब ये जादू से ही उतरेगा। नहीं तो जादू पता कैसे चला उसको जादू हुआ है, ये बताया ना वो, कैसे पता चला?
استاد صاحب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے نا مطلب میری پھپھو کا بیٹا ہے، تو اس کو مطلب کہ اس طرح جادو ہے، تو وہ اس کے جسم پہ کٹس پڑتے ہیں، اور مطلب کہ وہ جن جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یعنی بولتا بھی ہے، اس بچے کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے کام، یعنی کہ بچہ سگریٹ پی مانگتا ہے اور شراب مانگتا ہے، اور اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو اس طریقے سے پھر وہ اب تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کے اندر ہے، تو پھر وہ موزتین بھی پڑھتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سچویشن کے اندر کیا کرنا چاہیے، کہ کس طرف جانا چاہیے؟ کیا عاملوں کے پاس، یعنی کہ جو دینی طرف سے علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے. پہلی پہلی بات تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض دیکھیں کسی کام کے نہ ہونے کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی، حاضر آپ کہیں گے اس کے گھر بچہ بھی نہیں ہوگا. بعض وقت شادی ہو جاتی ہے، کسی اور وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، کسی اور وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا. یہ ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی نے آیات پڑھی، اب آپ کہتے فرق نہیں پڑا، تو صاف ظاہر ہے کئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے فرق نہ پڑتا. مثال کے طور پر آدمی کی کمائی حرام کی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بھی شامل ہے. خالی یہی نہیں کہ آپ نے پڑھ لینا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی، آپ کو کوالیفائی ہونا پڑے. مثال کے طور پر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، تو وہ یہ بی اے کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے طور پر آپریشن کرنے کے لیے لگا دیا جائے. ایگری کرتے ہیں جی آپ اس سے؟ یس سر، ایسے ہی ہے. لیکن آپ نے بی اے کیا، آپ مثال ہے آپ نے آیات پڑھی اثر نہیں ہوا. پہلی بات یہ سمجھے کہ آیات پڑھی اثر نہیں ہوا تو آپ کے لحاظ سے اللہ نے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا ہوا ہے. امتحان 2-3 گھنٹے چلے، 10 گھنٹے چلے، 2 دن چلے، آپ کو معلوم ہے جب تک وہ امتحان چلے گا اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کے اجر کو بلند کرے گا، زیادہ کر دے گا. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے کہ 20-25 سال لگتے ہیں؟ 20-25 سال لگتے ہیں. ہمارے یہاں جادو کا بھلا کیا کیا جاتا ہے کہ ادھر سے پڑھو ادھر سے جناب جادو وہ بھاگ جائے. نبی علیہ السلام والسلام کئی دن پریشان رہے، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. تو لہٰذا ڈیوریشن یا ٹائمنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کسی غیر سنت والے کے پاس نہیں جا سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہی پڑھو گا. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے گھروں کو پاک اور صاف رکھیں، خوشبو کا اہتمام کریں. گوبر اور یہ جو ہوتی ہے نا گوبر اور کوئلہ اس طرح کی چیزیں، ہڈی، گوبر اور ہڈی، جب آدمی گوبر اور ہڈی کے اوپر نجاست ڈال دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے تو یہ نا جنوں کا کھانا ہے. جن جب اپنے کھانے کو دیکھتے ہیں نا کہ کسی انسان نے خراب کیا تو کئی بار اس لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ گوبر اور ہڈی پر کوئی پیشاب اور پخانہ کرے، یہ تمہارے وہ جنوں کی خوراک ہے. اب کوئی ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں. اور سورہ بقرہ کی جو ہے نا آیات آپ پڑھ لیجئے گا. حتیٰ یقول الرسول متی نصر اللہ، کہ ایمان والے اور رسول کہہ اٹھا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اتنی دیر ہو گئی اللہ تیری مدد نہیں آ رہی. تو اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے. بعض اوقات صبح نکلنے میں دیر نہیں ہوتی، ہم لوگ سو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل بجا ہے. ٹھیک ہے نا، دن نکلنے میں کوئی دیر نہیں، ہم نہ سو جائیں اب تو ڈر ہے. یہ ایک مطلب مصرع ہے. دن نکلنے والا ہوتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور کسی دوسری طرف لگ جاتے ہیں. یاد رکھیے شریعت میں جادو کی کاٹ جادو سے نہیں کی جائے گی. جادو کی کاٹ کرنے کے لیے پہلی بات ہے اللہ کا قرآن کافی، نبی علیہ السلام کا فرمان کافی ہے. پہلے تو یہ یقین کر لیں، اس بات پہلے یقین بنا لیں. ٹھیک ہے جی، بن جائے گا یقین انشاءاللہ. یقین ہے سر، انشاءاللہ. اچھا اب دوسرا یہ کہ میچ ہوگا آپ کا جن کے ساتھ، وہ کبھی جن آپ کو نیچے گرائے گا، کبھی آپ اس کو گرائیں گے، آخر میں جیت آپ کی انشاءاللہ. 2 دن بعد آ جائے، 10 دن بعد ہو جائے، 15 دن بعد ہو جائے. اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی آدمی جن جادو کے مقابلے میں فوت ہی ہو جاتا ہے، چلے زیادہ فوت ہی ہو جائے گا نا، مر جائے گا، تو بتائیے جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. بس بات ختم ہو گئی. دیکھیں نا ہم نے اصل میں یہ نا ایک ایمان کی کمزوری کی علامات ہے. دیکھیے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب دنیا ہی دنیا ہے، بس میں 1000 سال 2000 سال جیوں گا، اوکے جی ٹھیک ہے. اب اصل میں ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے. اب جیسے ہی مجھے پتا ہے کہ میں اس جادو کا مقابلہ کر رہا ہوں، جن کا مقابلہ کر رہا ہوں، جن مجھے نیچے گرا رہا ہے، کٹ لگا رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، پیسے اٹھا رہا ہے، کھانڈی خراب کر رہا ہے، اوکے میں اپنے کام کو لگا رہا ہوں، وہ اپنا کر رہا ہے، میں اپنا کر رہا ہوں.
और मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, अगर मुझे अल्लाह ना करे उस मामले में मसला पेश आ जाता है, ज्यादा फौत ही हो जाऊंगा ना, ज्यादा से ज्यादा तो फौत हो गया, अल्लाह ताला के यहाँ मैं जन्नत में होऊंगा, जिन जो है वो जन्नत में चला जाएगा, और जन्नत की जो जिंदगी वो हमेशा की जिंदगी है, मसला ही नहीं है। क्या ख्याल है, आपको समझ आई बात की? जी। यस सर, आगे समझ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेट्स इसको हम एक और फिजिकल एग्जांपल से लेते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ ये ना मसला वाज़ेह हो जाए, कोई बात नहीं अगर इस पे टाइम लग जाए। दूसरा, क्योंकि इसमें बड़े लोग फंसे हुए हैं, दूसरा देखिए, कुछ क्रीम्स होती हैं चेहरे को चमकाने के लिए, मतलब चेहरा चमक जाता है, उससे आपका चेहरा जो है ग्लो करता है, और वो मतलब खूबसूरत हो जाता है, वट। अच्छा, अब सावधान है, एक चीज मौजूद उसके लिए बनाई गई है, तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप देखिए, एक चेरी ब्लॉसम है, उससे क्या चीज ग्लो करती है, चेरी ब्लॉसम यूज की जाती है, उससे कौन सी चीज चमकदार हो जाती है, बताएं। जी क्लास। जूते। देखिए, जब आप चेरी ब्लॉसम यूज करते हैं तो जूते चमक उठते हैं। अब अगर मैं चेरी ब्लॉसम से जूते को चमकता हुआ देखूं, तो मैं अगर उसको कहूं कि इसी से मैं अपना मुंह भी चमका लूं, तो बताइए एक ऐसी बात बनेगी, बनेगी कोई बात? जी क्लास। जी नहीं। जादू तो कुफर है, सर वो जो कुफर जो कैसे? चीज इसके लिए, हाँ। अब मैं वही बता रहा हूँ ना, जादू, हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला उनको रहमत फरमाए, जन्नत में जगह था, वो बोला कि कहीं मैं आयत दोबारा पे निकाल दूँ ये। इधर आप देख लीजिएगा, ये फला तकफुर, ये दो लफ्ज याद रखें। फरिश्ते जो जादू सिखा रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, जादूगर खुद कह रहे हैं कि ये कुफर है, ये देखिए वो कह कुफर ना कर, इससे बड़ी दलील क्या होगी कि वो खुद कह रहे हैं कुफर है। आप बताइए, कोई भी आदमी, आप में से मुझ में कोई भी आदमी बहक होशो आवाज नऊज बिल्ला कुफर कर सकता है, बताइए? नहीं। वो बोलेंगे, जवाब दें क्लास, बताएं। नहीं सर। नहीं ना कर सकता, वो कुफर है, मैं क्यों करूंगा? इसका मतलब ये नो हुआ, सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब जादू कुफर है, वही वाला हिसाब है कि वी विल नॉट यूज चेरी ब्लॉसम, हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे और चीजों को फर्क करेंगे, और चीजों के लिए हमारे पास अल्लाह ताला का इल्म मौजूद है, वो पुराने में। अब मसला वाला क्या है, अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, और मैं तो सिंपल बच्चों की एग्जांपल दिया करता था, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि आपके पास जो ये कोक की या स्प्राइट की या सेवन अप की बॉटल्स आपको पीने का इत्तेफाक हुआ है कभी? जी। बोले जी, जवाब, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं। जी अच्छा, आप बताएं, वो कैप अगर आप ना खोलें, कैप के बगैर पी सकते हैं आप खोले बगैर उसको? नहीं। नहीं ना खोल, अब नो सर। आपने कैप लगा रहने दिया, उल्टाया उसको, आप कहते हैं यार बोतल नहीं निकल रही, बोतल नहीं निकल रही, भाई उस पे कैप लगा हुआ है। हमारे ना बालों का दिल पर कैप लग जाता है, जब दिल पे कैप लग जाए तो कुरान मजीद असर नहीं करता, चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहे, चाहे हम मुर्दों पे पढ़ते हैं, आप जिंदों पे पढ़ते हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले वो कैप उतारा जाएगा, अल्लाह ताला का कुरान एंटर होगा, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह फरमाता है कि इनके दिलों पे ताले तो नहीं लगे हुए कि कुरान मजीद इनके अंदर जा ही नहीं रहा, कुरान पे गौर नहीं करते। कुरान पे गौर ना करने की वजह से हम समझ बैठते हैं कि जादू का मुकाबला जादू से किया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ईमान को मजबूत करें, हमने दुनिया में हमेशा नहीं रहना। आप, अल्लाह की कसम है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप, कोई आदमी जादू करे ना, जादूगर नहीं यहाँ रहना है, ना किसी और ने रहना है। अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया, इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपने भी मर जाना है, उन्होंने भी मर जाना है। तो आप ये जो आगे लफ्ज वो गौर करें, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, अगर ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से मिलता वो पास आप बेहतरीन था, अल्लाह ताला राजी हो गया, जन्नत इनको मिल गई, अल्लाह ताला ने अपना फजल व करम से नवाज दिया, तो उनके लिए बेहतर था, लौ कानू यालमून, काश ये जानते। जी शेख साहब, वो बाज कहते हैं दो चीजें, एक तो कुछ वो कुरानी आयात ही बताते हैं कि इसका यानी जादू का तोड़ इनसे करें कहीं और से कुरान में, और दूसरा कहते हैं रूहानी इलाज, वो पता नहीं क्या है रूहानी इलाज, लेकिन ये दो चीजें क्या ये सेम चीजें हैं या ये करना ठीक है या नहीं? पहली बात बोला कि देखिए, एक है किसी से दुआ करवाना, बात इधर समझ लें, एक है किसी से दुआ करवाना, तो साफ ज़ाहिर है दुआ करवाने के असरात डिफरेंट है। मतलब कोई आदमी अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार है, मुत्तबे है, अल्लाह ताला की नबी
की सुन्नत का, और आप उसे कहते हैं कि शेख या कोई भी आलिम, आप उसे कहते हैं मेरे लिए दुआ करिए, मुझे दम कर दें, कोई हर्ज वाली बात नहीं, ये तो साबित है। किसी काम करवा लिया आपने, किसी आपने, लेकिन अब अगली बात ये समझने वाली ये है कि रूहानी इलाज है या किसी और चीज का इलाज है, कुरान मजीद से ही होगा ना, कुरान मजीद और सुन्नत मुताहरा से होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को दम किया करते थे, हसन हुसैन का दम हुई बिस्मिल्लाह यरकीका मिन कुल्ली शैइन यूज़ीका, इस तरह उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा। सिर्फ ये है कि कोई सुन्नत की इत्तिबा करने वाला, वो अगर आपको दम करता है, सुन्नत के मुताबिक करता है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पहली बात बोला कि मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ समझ लिया गया है कि जब भी कोई ऐसा मसला पेश आएगा तो मैंने नहीं पढ़ना, मैंने सीधा किसी के पास चले जाना नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पढ़ना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपके पढ़ने से अल्लाह आपको निजात अता फरमा देगा उस काम से, पहली बात ये। और बिलफर्ज आप समझते हैं कि मेरे किरदार में या मेरी काम में कोई नक्स है, वो आप सावधान किसी मुत्तबे सुन्नत से कह सकते हैं, वो दम कर देगा, जर्ज वाली बात नहीं। लेकिन जिस तरह ये कारोबार बना लिया गया है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बस फर्क आपका। बाजी होगी जी बात। जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये याद रखें कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये नहीं ऐसा बनाया कि आपने कोई इल्म खास को दे दिया तो आम के लिए नहीं छोड़ा, आपने खास आम दोनों को एक इल्म दिया, तो ये खास के लिए भी आम के लिए भी है। हमें यकीन से करना है, हमें यकीन करना है कि अल्लाह ताला मेरे पढ़ने पर इंशाल्लाह मुझे माफ कर देगा और मेरे ये गलती को दूर कर देगा, मेरे गम को दूर कर देगा। वाज़ेह होगी जी बात। चलें, जी अल्लाह खैर करे। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि अब चूंकि आयत लंबी हो गई, अगली आयत में काफी सारे अहम मसाइल हैं, लिहाजा आज ना हम इसी पे इत्तेफाक करेंगे क्योंकि टाइम भी तकरीबन पूरा हो गया। तो फरमाया वलो अन्नहुम आमनू, अगर ये ईमान ले आते, वत्तकू, अल्लाह से डर जाते, तो लमसूबतुन मिन इंदिल्लाहि खैर, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो इनको सवाब मिलता, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको लौटाता, सवाब का मतलब है जो अल्लाह ताला रिटर्न अता फरमाता है इनको, वो बेहतर था। अल्लाह ताला भी राजी है, अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम भी राजी हैं, और अल्लाह ताला जब राजी हो जाता है तो अल्लाह ताला सारी मखलूक को राजी कर देता है, हर मखलूक जो है वो आपके काम में लग जाती है। तो मैं लौ कानू यालमून, काश ये जान लेते। तो ये रुकू मुकम्मल हो गया आपका। अगले रुकू के अंदर जो यहूदियों की बुरी आदत है और उनका जो इस्लाम के बारे में इतराजात है, जो कि काफी वो लंबी आयात है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ी जाएगी।